Please start, sir. Okay, good afternoon to one and all. I welcome you all in 1 week AICT IST Approved Refresher Program on Innovative Teaching Learning Methods Phase 3. Today, I am going to discuss a very well-known art of living teacher who will be talking about health and happiness. Mr. Nathu Nitwe sir has completed his TEE Diploma in Electrical Engineering in 1984. He has 22 years of industrial experience. He has 12 years teaching experience. Presently, he is working as lab technician in electrical department of VPKBIT Baramati. Next slide, sir. At present, he is working as an art of living teacher, master trainer of YLTP and RPL. He has been conducting yoga sessions from last 11 years. He has his expertise in pranayam, meditation, source of energy, pran, and the state of mind, importance of breath, nature of mind, and health tips. I would like to request Mr. Nathu Nitwe to thank you, sir. Hello, welcome all. Am I audible? Yes, sir. You are audible. Please. And we can see you, sir. Welcome again. So today we discuss about health and happiness. So this is the unique workshop for health, mental peace, physical health. So first of all, we get to know the definition of health. What is health? So health is basically physical, mental, and spiritual well-being. Physical, mental, and spiritual well-being. Most of the people are aware about the physical health. So they do some exercise, gym, walking, running, etc. But very few people are aware about mental peace. And those who are aware of, they generally arrange some trips, arrange some nature walks, and so on. They do something for mental peace. But awareness about spiritual health or spiritual upliftment is very less. So this is the definition defined by World Health Organization: spiritual, mental, and physical health. Now, happiness. What is happiness? See, if we ask to a college boy, where is his happiness? So, अगर उसको पूछेंगे हम कि उसकी हैप्पीनेस कहाँ है, या जिसके पास बाइसिकल है उसको हम पूछेंगे उसकी हैप्पीनेस कहाँ है. So what they will tell? Naturally, those who are having bicycle, their happiness is in motorbike. Okay, those who are having motorbikes, their happiness is in cars. If they have the car or bike or whatever they want, they get happy. But the next moment, if they see something more or something better than this they are having, then their happiness goes on. So to be happy, they naturally look for some object or something what they do not have. Or even some people, they demand for some situation or some specific period for getting happy. एक पर्टिकुलर सिचुएशन आएगा तब मैं हैप्पी बनूंगा.
मैं जैसे एक टेंथ में जाने वाला स्टूडेंट है, तो उसको पूछेंगे हम कहाँ उसकी हैप्पीनेस कहाँ पर है, तो बोलेगा कि मैं टेंथ में अगर 100% या 90%, 99% मार्क्स ले पाऊंगा तो आई बी हैप्पी। ओके, उसको मिला 10%, 90%, 95% उसको मार्क्स मिला, हैप्पी। उसके बाद में क्या होता है उसका, जैसे उसको एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाता है तो उसका हैप्पीनेस गायब हो जाता है। फिर उसका हैप्पीनेस आगे अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिला, फिर उसका हैप्पीनेस का जो डिमांड बनता है वो 12th में अच्छा स्कोर करूंगा तब हैप्पी बनूंगा। तो ये सब ऐसे बढ़ता बढ़ता चला जाता है कि मैं हैप्पी, जो एक चीज मिला तो मैं हैप्पी, उस मोमेंट के लिए मैं हैप्पी होता हूँ, बट उसके बाद मैं और कुछ आगे डिमांड करता हूँ तो मेरा हैप्पीनेस पोस्टपोन होता जाता है। तो हैप्पीनेस इज ऑलवेज पोस्टपोन आवर हैप्पीनेस and will never be happy at all the times. So happiness that generally we hook on to the to some situation, some object or something which we do not have, or some personality, special personality which we want to make. तो ये सब हम चाहते हैं, हम हैप्पीनेस चाहते हैं, बट हम हैप्पी नहीं होते। हम for all the period we do not happy because we want something, we demand something, कुछ हम चाहते हैं, इसके लिए हम अपना हैप्पीनेस आगे आगे want करते हैं। अब ये हैप्पी होने के लिए क्या करना चाहिए? हैप्पीनेस के लिए टिप्स है, कुछ है टिप्स, ये परमानेंट हैप्पीनेस के लिए भी कुछ टिप्स है, आगे जाके हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब लिंकेज क्या है, हेल्थ एंड हैप्पीनेस का लिंकेज क्या है, हेल्थ का रिलेशन क्या है? अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम हैप्पी रहेंगे, और अगर हम हैप्पी रहेंगे देन ओनली विल बी हैप्पी। ये सब एक दूसरे पे डिपेंड है। हेल्दी रहेंगे तो हैप्पी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे, एक दूसरे पे डिपेंड है, दे आर लिंक्ड विद ईच अदर। नाउ टू अचीव हेल्थ हम कुछ प्रैक्टिस तो करते हैं। हेल्थ के लिए, हेल्थ फिजिकल हेल्थ के लिए कुछ अलग प्रैक्टिस करते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए कुछ अलग प्रैक्टिस करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के लिए कुछ और करते हैं। बट एक ऐसा थियरी है योगा जिससे हम सब कुछ मिलता है। इट इज अ यूनिक टेक्निक। इफ वी प्रैक्टिस दैट योगा, हमें सब कुछ मिलता है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट आल्सो। योगा करने से हमें सब कुछ मिल जाता है। योगा एक यूनिक टेक्निक है जिसे हम बहुत कुछ पा सकते हैं। महर्षि पतंजलि, ये इज अ साइंटिस्ट ऑफ योगा, बेसिकली इज द लीडर इन योगा। महर्षि पतंजलि, पातंजल योग सूत्र, he has written पातंजल योग सूत्र। उसमें काफी कुछ उसमें उन्होंने लिखा हुआ है। कुछ अच्छे स्टेटमेंट सेंटेंसेस है। योग कर्मसु कौशलम, योग करने से हमारे कौशल स्किल्स बढ़ जाते हैं, योग से स्किल बढ़ जाती है। जैसे हम अब पढ़ाई करते हैं तो अगर एक टॉपिक पढ़ने के लिए हमें 2 घंटा लगता है मान लो, तो योगा, अगर कोई योगा करता है, मेडिटेशन करता है, तो उसका जो पढ़ाई करने का टाइम है वो थोड़ा कम हो जाता है। उतना ही टॉपिक वो कम समय में पूरा पूरा कर सकता है। तो ये स्किल्स उसका बढ़ जाता है। योगा करने से स्किल्स बढ़ जाता है, अपना टाइम सेव हो जाता है। और कुछ है, योग चित्त वृत्ति निरोधाः। अपना मन जो है ना, देखिए और नकारात्मकता मन की सहज प्रवृत्ति है। नकारात्मकता आती है मन में, वो एक नेचुरल टेंडेंसी है मन की। अभी मान लो कि हम एक अच्छे दृश्य के सामने खड़े हैं, वाटरफॉल है, ग्रीनरी है, बहुत कुछ है, और उस देख रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है,
और ऑल ऑफ अ सडन हमें एक फोन कॉल आता है और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारी आंखें तो खुली है, सामने दृश्य भी है, बट हम देख नहीं पाते। क्या होता है उस समय? तो वो जो सीनरी है वो कौन देखता है? आप आंखों से देखते हैं, हम देख पाते हैं? तो कैसे दिखता नहीं है। तो मन अनुभव करता है। मन अपनी इंद्रियों से जो भी होता है वो अनुभव कर लेता है। मन अनुभव करता है, मन आंखों से देखता है, मन जीवा से टेस्ट करता है, मन कानों से सुनता है। ये सब मन है जो अनुभव करता है। तो जो चित्तवृत्तियां हैं उसको नेचुरल टेंडेंसी उनकी नकारात्मकता है, उस नकारात्मकता को सकारात्मक पॉजिटिव में उसको डाइवर्ट करना ये योग से संभव होता है। जो भी चित्तवृत्तियां हैं वो नकारात्मकता से मुड़ के सकारात्मकता की वो हम डाइवर्ट कर सकते हैं। ये चित्तवृत्तियों का हम विरोध कर सकते हैं। इसके लिए योगा बहुत अच्छा है। योगा योगा करने के लिए बहुत कुछ लगता भी नहीं, हम अकेले और कुछ मैट्रेस वगैरह काफी है, योगा कर सकते हैं। तो योगा करने के लिए योगा क्या है? बेसिकली व्हाट इज योगा? योगा इज कनेक्टिंग ऑफ व्हाट? योगा इज कनेक्टिंग ऑफ बॉडी एंड माइंड विद द हेल्प ऑफ ब्रीथ। सांसों से अपने मन को और शरीर को जोड़ना योग है। जैसे पतंग है, मान लो पतंग है, पतंग मन है, तो उसकी जो दूरी है वो सांस है। उस दूरी से हम पतंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें योगा में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ब्रीथ है, सांस से हम बहुत कुछ पा सकते हैं। सांस क्या है? एवरीबडी नोज, सब हमें सबको पता है हमारी सांस चल रही है, बट हम उसके बारे में ज्यादा अवेयर नहीं होते। हमें कब पता चलता है हमारी सांस है, हमारी चलती भी है? जब हम कुछ रनिंग करते हैं, कुछ दौड़ते हैं या कुछ हेवी वर्क करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारी सांस अभी है जल्दी जल्दी हो रही है। तो सांस के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेथ। हाँ, तो देखिए हम जो भी अपनी बॉडी को देते हैं, हम खाते हैं, खाना खाते हैं, इसमें एटमॉस्फेयर में, जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, ये सब हम अपने शरीर को प्रोवाइड करते हैं। और कुछ चीजें हम शरीर से बाहर छोड़ते हैं, टॉक्सिन्स बाहर छोड़ते हैं। जो भी टॉक्सिन्स शरीर से बाहर जाता है वो उसमें से 90% टॉक्सिन एक्सहेल करने से बाहर जाता है। एक्सहेल, जब हम सांस छोड़ते हैं बाहर, उसके साथ 90% टॉक्सिन बाहर चला जाता है। 8% नॉर्मली एक थंब रूल है या अंदाजन बताया हुआ है। 8% टॉक्सिन हम जो भी वेस्ट बाहर छोड़ते हैं, मलमूत्र विसर्जन वगैरह, उसमें से बाहर चला जाता है। और 2% हमारी नाक, कान या जो भी पसीना वगैरह आता है उससे बाहर निकलता है। तो 90% वेस्ट जो है वो सांस से, जब हम एक्सहेल करते हैं उससे बाहर जाता है। इतना इम्पोर्टेंट सांस है। तो एक इम्पोर्टेंट हम कुछ करेंगे अभी। आप जहां भी बैठे हो उसके साथ उसमें वो करते रहना है। तो सब लोग तैयार हैं? हम कुछ करेंगे, कुछ योगा करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे। एवरीबॉडी इज रेडी? ओके। तो हम सांस ठीक से चल रहा है, सांस ठीक से लेते हैं क्या? सांस ठीक से चल रहा है क्या? हम देख लें। तो क्या करेंगे? हम अपने पीठ पर, नाभि पर एक हाथ रखेंगे और सांस अंदर लेंगे। नाभि पर हाथ रखेंगे और सांस अंदर लेंगे। ले लीजिए, नाभि पर हाथ रखकर सांस अंदर ले लीजिए। और छोड़िए। अब हमें ये देखना है, जब हम ब्रीथ इन करते हैं या सांस अंदर लेते हैं, तब हमारे पेट
क्या होता है, हमारा पेट फूल जाता है या अंदर चला जाता है, वो देखना है। तो ये इसके साथ हम वापस एक बार सांस ले ले। ब्रेथ इन और छोड़ दे। और एक बार देख लें। अब बताइए क्या होता है, क्या होना चाहिए और क्या होता है। जनरली बहुत सारे लोगों का जब हम सांस अंदर लेते हैं तब पेट भी अंदर चला जाता है। अब होना क्या चाहिए, जब हम किसी बलून में हवा भरते हैं तो बलून छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। ये भी तो एक बलून ही है। जैसे हम फेफड़ों में लंग्स में हवा भरते हैं तो लंग्स के नीचे एक अ, पतला सा एक लेयर है और उसके नीचे अपना स्टमक है, तो वो सब प्रेस हो जाता है, फूल जाता है और पतला जो लेयर है वो नीचे दब जाता है और पेट बाहर आना चाहिए। तो हवा अंदर लेते वक्त पेट बाहर आना चाहिए और जब हम हवा छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, तब पेट अंदर चला जाना चाहिए। अब इसके साथ वापस एक बार और कर लेते और एक बार हाथ रखें और अब भी पूरी अवेयरनेस के साथ हम कर लें। जब भी हम इनहेल करेंगे पेट ऊपर आना चाहिए और एक्सेल करेंगे तो पेट वापस अपनी जगह पे जाना चाहिए। ब्रेथ इन और छोड़िए। तो इसकी प्रैक्टिस करें। अपना जब भी हम सांस लेते हैं पेट बाहर आना चाहिए, ये प्रॉपर टेक्निक है ब्रीदिंग का। पेट जब भी पेट में हवा भरते हैं तो पेट बाहर आना चाहिए, तब हम प्रॉपरली ब्रीथ कर सकते हैं। देखिए अपना जो लंग्स कैपेसिटी है उसमें से जनरल पर्सन, ये जो भी कोई कुछ नहीं करता है, कुछ एक्सरसाइज नहीं करता है, कुछ योगा नहीं करता है, उसकी जो लंग कैपेसिटी है वो 30% यूज करता है। जो लोग कुछ योगा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, उनकी लंग कैपेसिटी थोड़ी बढ़ जाती है, 40-45%, 50% तक बढ़ जाती है। जो योगी है कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं, उनकी कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी और ज्यादा रहती है। तो हम जितनी लंग प्रैक्टिस करेंगे लंग कैपेसिटी बढ़ेगी और वो सब अपने हेल्थ के लिए एडवांटेज है। अब हम इसका अवेयरनेस के साथ ये प्रैक्टिस करेंगे हम घर पे भी। ये सेशन खत्म होने के बाद भी इसके इसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस करिए। जब हम आराम से बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं तो पेट के ऊपर कुछ रखेंगे और जब हम इनहेल करेंगे तो पेट ऊपर आना चाहिए, जब एक्सहेल करते हैं तब पेट अपनी जगह जाना चाहिए। ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा अब योगा करेंगे, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज या कुछ थोड़ा सा सूक्ष्म योगा हम करेंगे सब साथ में करेंगे। यस नो ओके। तो अब मेरे साथ कर ले सब। जब आप चेयर में बैठे हो या जैसे भी बैठे हो आप आगे कर ले। करते हैं सब लोग और घुमा लीजिए। ये जो एक्सरसाइज अभी हम कर रहे हैं ना, ये स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। मुट्ठी बंद करके घुमा लेते हैं, उल्टा सीधा दोनों तरफ। उंगलियां खुली छोड़ के ऊपर नीचे, अंदर बाहर घुमा लें। हाथों को घुमाएंगे उल्टा सीधा दोनों तरफ से। वापस एक बार मुट्ठी बंद कर ले और घुमाते घुमाते सांस करते करते ऊपर तक ले जाए। फिर सांस छोड़ते छोड़ते नीचे सामने हाथ लेके आएंगे, फिर सांस लेते लेते ऊपर जाएंगे।
वापस सांस छोड़ते छोड़ते नीचे आएंगे और एक बार, हल्का सा जर्क। अब थोड़ा सा गर्दन का एक्सरसाइज करेंगे। गर्दन, सांस छोड़ते छोड़ते आगे की ओर, चिन छाती में टच हो जाए, फिर सांस लेते लेते ऊपर और छोड़ते छोड़ते पीछे ले जाए, फिर सांस लेते लेते ऊपर, छोड़ते छोड़ते आगे। चालू रखें। लेफ्ट राइट, दाएं कंधे पे बाएं कंधे पे, सांस लेते लेते ऊपर, छोड़ते छोड़ते नीचे, फिर सांस भरते भरते ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते छोड़ते नीचे जाएंगे। चालू रखें। रिलैक्स। देखिए, योगा में एक रूल है सांस का। जैसे हम शरीर और जमीन से दूर जाएंगे, सांस अंदर जाएगी, और शरीर और जमीन की तरफ जाएंगे, सांस बाहर जाएगी। जैसे हम अपने सिर को उठाते हैं तो सांस अंदर आएगी, शरीर सर को झुकाते हैं तो सांस बाहर जाएगी, फिर उठाते हैं अंदर, फिर झुकाते हैं बाहर जाएगी। तो एक एक ही रूल है। सांस जब हम जमीन या शरीर से दूर जाते हैं तो सांस अंदर जाएगी, जब हम जमीन की तरफ या शरीर की तरफ आएंगे, जैसे हाथ उठाएंगे तो सांस अंदर जाएगी, हाथ नीचे करेंगे, सांस छोड़ देंगे। अब नेक रोटेशन करेंगे थोड़ा सा। वापस एक बार सांस छोड़ते छोड़ते चिन को छाती पे टच करेंगे, फिर सांस भरते भरते, या कुछ गर्दन की तकलीफ है वो धीरे करें या ना करें, फिर राइट साइड से छोड़ते छोड़ते आगे लेके आएंगे, फिर सांस भरते भरते पीछे, छोड़ते छोड़ते दूसरी साइड से आगे करते रहें। अपोजिट डायरेक्शन। ये सिटिंग योगा है, तो बैठे बैठे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे और कुछ, जैसे पैर एक दूसरे को सामने लाएंगे और हाथ हाथ में से उसको और नजदीक खींचेंगे, थोड़ा सा इधर उधर। जो लोग नहीं कर सकते हैं वो ध्यान दे, सीख ले, और जब भी घर पे जाएंगे इसे प्रैक्टिस जरूर कर ले। ये सब बहुत अच्छा है अपने हेल्थ के लिए। थोड़ा सा बटरफ्लाई बन जाते, स्पाइन इरेक्ट रखेंगे, हल्का सा स्माइल, धीरे धीरे स्पीड कम कर ले और थोड़ा पीछे सांस भरते भरते और छोड़ते छोड़ते आगे, जितना तक जा सकते हैं जाएंगे, रुकेंगे और ऊपर के, और एक कर लेते, एक पैर को फैलाएंगे, दूसरे को उठाएंगे, अपने कोहनी में रखेंगे, और ये दूसरा हाथ घुटने के नीचे से एक दूसरे हाथ एक दूसरे में लॉक करेंगे,
एकदम छाती की तरफ खींचेंगे और घुमाएंगे उसको। मान लो एक बेबी है, हम उसको खिला रहे हैं। थोड़ा सा नजदीक लेके आए और रिलैक्स। ट्विंस है तो दूसरा बेबी भी ले लेंगे। रिलैक्स। ओके, थोड़ा सा हाथ नीचे पीछे रख के पैरों को थोड़ा सा आगे पीछे आए, आजू बाजू। ठीक है, ये कुछ एक्सरसाइज हुआ। अब थोड़ा सा सूक्ष्म योगा भी कर लेते हैं। सूक्ष्म योगा, इससे क्या होता है ना, अपने जैसे आंखों के नीचे के जो ये रहता है ना, थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट्स वगैरह रहता है, वो सब निकल जाता है सूक्ष्म योगा से। क्या करना है, हाथ को सर के ऊपर रखना है और घुमाना है। मतलब हाथ नहीं घुमाना है, तो हाथ के साथ चमड़ी भी घूमनी चाहिए, सर की चमड़ी हिलनी चाहिए। हल्का सा प्रेस करके चमड़ी को घुमाएंगे, उल्टा सीधा, फॉरवर्ड रिवर्स दोनों तरफ से। बाजू में इधर भी फॉरवर्ड रिवर्स दोनों तरफ। थोड़ा सा फोरहेड, और थोड़ा सा ऊपर से लेके नीचे तक लेके आएंगे बाजू से। इधर अपर और लोअर जॉ। थोड़ा कानों को खींचेंगे, अपने कानों को अपन ही खींचेंगे तो औरों से खिंचवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे। ओके, थोड़ा सा बड़ा ये करके थोड़ा सा चमड़ी अंदर अंदर बाहर करेंगे। जीवा से टक टक कर सकते हैं। ये यहाँ से फिर नीचे भी कर सकते हैं, पूरा नीचे से। ओके, अब थोड़ा सा आइस, आंखों का सीधा बैठेंगे और अपनी आंखें ऊपर की ओर खींचेंगे, एकदम एक्सट्रीम अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, राइट साइड, लेफ्ट साइड, एक्सट्रीम तक खींचेंगे। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अब ऊपर और घुमाएंगे, लेफ्ट, सॉरी राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, घुमाते रहेंगे अपनी स्पेस से। एक्सट्रीम खींच के, बाहर की ओर खींच के आंखों को, दोनों आंखों को साथ में घुमाएंगे। अपोजिट साइड, अपोजिट डायरेक्शन।
ओके, अच्छा लग रहा है? ये सूक्ष्म होगा, ऐसे बहुत ये है, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एटलीस्ट इतना तो किया तो भी काफी है। तो ये थोड़ा सा सूक्ष्म योगा, फिजिकल योगा कर लिया। अब थोड़ा सा प्राणायाम के बारे में भी जान लेते हैं। प्राणायाम क्या है, प्राण क्या है? तो प्राण और आयाम, ये संस्कृत वर्ड है, प्राण और आयाम। प्राण माने हम लोग फिजिक्स में सीखते हैं ना, प्राण वायु। प्राण हम उसका रिलेशन ऑक्सीजन से लगाते हैं, बट एक्चुअली प्राण इज अ लाइफ फोर्स एनर्जी, सूक्ष्म जीवनी ऊर्जा। हाँ, वो अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी है। योगा की इसमें उसे लाइफ फोर्स एनर्जी कहते हैं, प्राण। और आयाम मीन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो आयाम डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन उसका प्राणवायु जो भी हम अंदर लेंगे, ब्रीथ इन करेंगे, तो सब पूरे सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्राणायाम। अब प्राणायाम का जनरल जो बेनिफिट है वो नाभि से लेके गले तक, ये इतने शरीर को प्राणायाम का बेनिफिट ज्यादा मिलता है। देखिए, काफी कुछ प्राणायाम से कर सकते हैं। प्राणायाम में अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ती है। प्राणायाम करने से हेल्थ में काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है। तो प्राणायाम करना बहुत अच्छा है। प्राणायाम करने से हम मन शांत कर सकते हैं, मन को काफी अच्छा सा एकदम शांत हो जाता है। ठीक है, तो एक एक दो दो चार प्राणायाम अपन सीख लेंगे। तो पहला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। हम नाड़ी शोधन प्राणायाम में क्या करेंगे? देखिए, नाड़ी शोधन एक राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड की पहली दो उंगलियां दोनों आईब्रोज के बीच में, थंब एक नासिका पर और आखिरी दो उंगलियां दूसरे नासिका पर। ये पोजीशन है, राइट हैंड ही लेना है। अगर आप लेफ्टी भी हो तो राइट हैंड की ऊपर लेना है। पहले दो उंगलियां दोनों आईब्रो के बीच में, अंगूठा एक नासिका पर और आखिरी दो उंगलियां दूसरी नासिका पर। अब जो लेफ्ट हैंड है वो एक मुद्रा करके रखना है, ये चिन्ह मुद्रा बोलते हैं उसको। ये चिन्ह मुद्रा में अपने घुटनों पे उसे रख देना है, उसे कुछ नहीं करना है। तो पोजीशन ले लेते हैं। अब मेरी इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से सुनिए। दोनों आईब्रोज के बीच में पहले दो उंगलियां हैं, अंगूठा एक नासिका पर और आखिरी दो उंगलियां दूसरी नासिका पर। अब दोनों नासिकाएं खुली है और हम इनहेल करेंगे, ब्रीथ इन करेंगे। अंगूठे से राइट साइड बंद करके लेफ्ट साइड से अपन सांस छोड़ेंगे और फिर वहीं से लेफ्ट साइड से हम सांस अंदर लेते, तब हम प्राणायाम शुरू करते हैं। लेफ्ट साइड से अंदर लिया, हल्का सा पॉज लिया और राइट साइड से छोड़ दिया। अंगूठा उठा के राइट साइड से छोड़ दिया, फिर हल्का सा पॉज और फिर राइट साइड से सांस अंदर, अंगूठा बंद करके दूसरी दोनों आखिरी दोनों उंगलियां उठा के लेफ्ट साइड से बाहर, फिर लेफ्ट साइड से अंदर, राइट साइड आउट, breathe in from right side, out from left side. Continue. This is basically alternate nostril breathing. ये चालू रखना है। राइट साइड से लिया, लेफ्ट साइड से छोड़ा, लेफ्ट साइड से ही लिया, फिर राइट साइड से छोड़ा, फिर राइट साइड से लिया, लेफ्ट साइड से छोड़ना चालू रखे। ये हमें कंटिन्यूअसली
हो सके तो आंखें बंद रखे लेफ्ट साइड से सांस छोड़ते छोड़ते विश्राम कर ले। अब ये कितना समय तक करना है? जैसे देखो हमने क्या किया, पहले दोनों नासिकाएं खुली है, सांस अंदर लिया और राइट साइड बंद करके लेफ्ट साइड से छोड़ा। और जब हम लेफ्ट साइड से अंदर लेते हैं तब से प्राणायाम शुरू हो गई। लेफ्ट साइड से लिया, राइट साइड से छोड़ा, फिर राइट साइड से लिया, लेफ्ट साइड से छोड़ा, ये एक राउंड हुआ। ऐसे हमें 9 राउंड करने हैं। हाँ? मान लो मेरे 9 राउंड 4 मिनट में पूरे हो गए तो मैं 5 मिनट तक करूँ, और या मेरे 5 मिनट में 8 राउंड हो गए तो मैं 9 राउंड। जो ज्यादा है 9 राउंड या 5 मिनट, जो ज्यादा है उतना हम नाड़ी शोधन प्राणायाम। लेफ्ट साइड से लिया, राइट साइड से छोड़ा, राइट साइड से लिया, लेफ्ट साइड से छोड़ा। एक ऐसा कंटिन्यूसली करना है। लेफ्ट हैंड चिन्ह मुद्रा में आराम से लेफ्ट नी पर रखना है और ये प्राणायाम करना है। ठीक है। सो ये बहुत अच्छा प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। इससे अपना एनर्जी लेवल बहुत जल्दी से बढ़ जाता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। ठीक है। फिर ब्राह्मरी प्राणायाम। ब्राह्मरी प्राणायाम मतलब मराठी में बोलते हैं ना भूंगा, भ्रमर। तो भ्रमर कैसे आवाज करता है, वैसे आवाज करने का, उससे अपना जो आईक्यू या जो अपना ये है थोड़ा सा अपने आजू बाजू का जो एटमोस्फेयर है वो अच्छा हो जाता है। अब देखिए करना क्या है, इसमें एक साधारण सांस लेनी है और कान, ये जो कान के नीचे जो ये है ना, उसको दबा के कान को बंद करने का और आवाज करते करते छोड़ने का। जैसे मैं अभी करके दिखाता हूँ। सांस लिया, कान बंद किया और ऐसा 3, 4, 5 बार करने का। सब लोग कर ले। सिर्फ कान बंद करके गूंगे जैसा आवाज करते करते छोड़ना है उसे। और एक बार इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे ब्रीथ किया और जो कान है ना वो क्लोज ओपन करते रहने का। जैसे सांस लिया, सब लोग कर ले 1-2 राउंड।
तो ये भ्रामरी प्राणायाम, इसको षण्मुखी मुद्रा में भी कर सकते हैं। षण्मुखी मुद्रा मतलब जैसे पहली उंगलियां ऊपर, दूसरी उंगलियां अपने नासिका के बाजू में, तीसरी उंगलियां नासिका के नीचे और चौथी उंगलियां लोअर लिप के नीचे और अंगूठा कान के ऊपर। नासिका खुली है, कान खुले हैं और सांस अंदर लिया। और अब सांस छोड़ने से पहले नाक में, नासिका में थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करना है दोनों बाजू से, और कान पूरी तरह से बंद कर लेना है और सांस छोड़ना है। वापस एक बार सांस लिया, सब लोग पोजीशन ले। पहली उंगलियां आईब्रोज के ऊपर, दूसरी उंगलियां दोनों हाथ की नासिका के ऊपर बीच में, तीसरी उंगलियां नासिका के नीचे और चौथी आखिरी उंगली लोअर लिप के नीचे और अंगूठे कान के ऊपर। सांस ले, कान बंद, नासिका पर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करें और सांस रिलीज करें। और एक बार तो ये षण्मुखी मुद्रा में भ्रामरी प्राणायाम। तो ये इसके फायदे भी बहुत अच्छे हैं। तो ये हो गया भ्रामरी प्राणायाम। अब एक अच्छा सा प्राणायाम अपन सीखेंगे जो आजकल के इस कोरोना पैंडेमिक में बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है, काम आएगा। तो क्या करना है उसके लिए, हमें वज्रासन में बैठना है। वज्रासन मतलब जैसे दोनों घुटनों के ऊपर हम खड़े रहेंगे, दोनों घुटने के ऊपर खड़े रहेंगे और पीछे जो पैर है वो अंगूठे, पैरों के अंगूठे एक दूसरे को टच करके हील को बाजू में कर लेते हैं और वो दोनों पैरों का वी बना लेते हैं। और जो वी बनेगा उस वी में हम बैठेंगे। ये वज्रासन हो गया। अब इस वज्रासन में सीधे साढ़े श्वास लेने हैं। वज्रासन में ये पोजीशन, भस्त्रिका का पोजीशन, हाथ कोनिया शरीर के बाजू में, हथेली मुट्ठी पर, दोनों हाथ। और अभी करना क्या है, पहले तो देख लीजिए एक बार, एक दो राउंड में करके दिखाता हूँ। जैसे कोई भी प्राणायाम करने से पहले एक दो बार सांस अंदर लेके छोड़ना है, सो दैट अपना जो लंग्स है वो पूरा एम्प्टी हो जाए। अब सांस अंदर, हाथ ऊपर, हथेली खुली, फिर जोर से छोड़ना है सांस और हथेली बंद, हाथ नीचे। मैं अभी सांस के साथ करूंगा। आसान है, जैसे हाथ ऊपर, सांस अंदर, और जब हाथ नीचे आएगी तो पूरा जोर से सांस को छोड़ देना है और फिर हथेली मुट्ठी बंद कर देना है। ठीक है, सब लोग कर ले। कुर्सी में बैठ के भी कर सकते हैं आप। कुर्सी में बैठे हो तो वज्रासन ना करें, ऐसे ही आप भस्त्रिका की पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए। ओके, पूरी हथेली जो है, ये जो कोनिया है वो पूरे शरीर के बाजू में सटा हुआ, हाथ मुट्ठी कंधे के बाजू में। अब एक दो सांस ले ले और छोड़े।
और ब्रेथ इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। कंटिन्यू। और विश्राम कर ले। इसके लिए एक 2-3 राउंड कर देना चाहिए। सेकेंड राउंड तैयार हो जाएंगे। एक साधारण श्वास अंदर और बाहर, और एक सांस अंदर और पूरी तरह से बाहर। शुरू करते हैं। ब्रेथ इन आउट, रिलैक्स। अपना पूरा ध्यान अपने शरीर के ऊपर। आंखें बंद रखेंगे। और एक राउंड कर लेते हैं। तैयार हो जाएंगे। हाथ कंधों के पास में, कोहनियां शरीर के बाजू में। एक सांस अंदर और बाहर, और एक बार सांस अंदर और नाउ ब्रेथ इन आउट, इन, कंटिन्यू। और रिलैक्स। वज्रासन छोड़े और आंखें खोले। अब देखिए, हम बीच बीच में आंखें खोलते हैं। जब हम घर पे करेंगे ना, तो ये पूरे प्राणायाम एक साथ जब करेंगे तो बीच बीच में आंखें खोलने की जरूरत नहीं है। हम अब सीख रहे हैं तो आंखें खोल के देखना भी है, सुनना भी है। ठीक है। देखिए, ये कितना, मतलब कितने काउंट्स करना है, कितने बार करना है। तो 3 राउंड करने हैं और एक राउंड में 15 से 20 काउंट सांस। तो 15 से 20 सांस ऐसे 3 राउंड करने हैं। अगर बहुत ज्यादा हॉट एटमॉस्फेयर है, बाहर पूरा गर्म वातावरण है, तब हम 3 राउंड 15 सांस ले लें। और अगर कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर है तो 20-20 की 3 राउंड करेंगे। ठीक है। तो ये सादे सांस है। सादे सांस में हमें वज्रासन में बैठ के करेंगे तो इसका बेनिफिट बहुत अच्छा है, ज्यादा। इसे इंस्टेंट कॉफी भी कहते हैं। ये कोविड में काफी बेनिफिट है। ठीक है। और एक प्राणायाम अपन सीखेंगे, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति तो काफी लोगों को पता है, बट काफी अलग अलग तरीके से करते हैं। कपालभाति बहुत आराम से करना चाहिए। कपालभाति कैसे करते हैं? कपालभाति बेसिकली प्राणायाम नहीं है, वो तो क्रिया है। कपालभाति क्रिया है। जनरली प्राणायाम का बेनिफिट जो है वो नाभि से गले तक के शरीर के लिए होता है, बट कपालभाति का जो बेनिफिट है वो कपाल तक होता है, इसलिए उसको कपालभाति कहते हैं। कपालभाति मतलब ये बहुत सारा, बहुत ज्यादा से शरीर उसको बेनिफिट मिलता है। तो करना क्या है?
तो कुछ नहीं करना है, एक आराम से सांस लेना और फोर्सफुल एक्सहेल करना, बस इतना ही। आराम से सांस अंदर आएगी, अपने आप आएगी, और फोर्सफुल एक्सहेल करते जाना है बस। बट वो बहुत ज्यादा स्पीड से या बहुत कम स्पीड से, एक मीडियम पेस से इसे करते रहना है। देखिए मैं कुछ सांस लेके आपको दिखाता हूँ। एक एक दो ऑर्डिनरी सांस लेके छोड़ दे। कपालभाति शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे इनहेल जो हवा अंदर आएगी, सांस अंदर आएगी, वो अपने आप आएगी, हम लेंगे नहीं, मतलब उसके लिए हम जोर नहीं लगाएंगे, अपने आप आएगी, जितनी आएगी उतनी आएगी। बट हम फोर्सफुली बाहर निकालेंगे, फोर्सफुल एक्सेलेशन वो करते रहेंगे। तो एक मीडियम स्पेस से इसी स्पीड से हम और भी इसके भी एक दो राउंड करेंगे। नॉर्मली इसके 20 से 25 स्ट्रोक्स पर राउंड, ऐसे 3 राउंड करते हैं। चलो अपन आज 2 ही राउंड कर ले। एक साधारण सांस अंदर और बाहर, और एक सांस अंदर और बाहर। शुरू करते हैं, आंखें बंद रखें। इस राउंड कर ले। और एक राउंड, साधारण सांस अंदर और बाहर, और एक सांस अंदर और बाहर। शुरू करें। रिलैक्स। चलिए और एक आखिरी राउंड कर लेते हैं, तीसरा राउंड। एक सांस अंदर ले और बाहर, और एक सांस अंदर लेते और छोड़े। शुरू करें। विश्राम। और आंखें खोल लें। तो ये कपालभाति 20-25 अराउंड 25 स्ट्रोक पर राउंड, ऐसे 3 राउंड करने हैं। कपालभाति प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है, इसका बेनिफिट भी काफी अच्छा मिलता है। ठीक है, अब थोड़ा सा
कोरोना के लिए और जो पूरा हॉट एटमॉस्फेयर है ना, उसके लिए अच्छा प्राणायाम है, उसे शीतली प्राणायाम कहते हैं। शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं, ये तो मतलब जैसे बहुत अच्छा है। जैसे देखिए, हमने सांस लिया और हम करते हैं, थोड़ा सा हमें आराम लगता है। ऐसा ही है, करना क्या है, सांस लिया और अपना जो जीवा है उसका यू शेप बनाने का, उससे हम सांस को बाहर निकालेंगे। और एक बार सांस ले, जीवा का एक जैसा या यू 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 शेप जैसा बनाने का, और उससे हमें जो एक्सेल करना है वो माउथ से, जीवा के ऊपर से हवा को बाहर छोड़ना है, तो शरीर के अंदर जो हीट है वो कम हो जाती है। शीतली प्राणायाम, ठीक है, काफी कुछ हमने सीख लिया प्राणायाम में। तो ये प्राणायाम के बेनिफिट बहुत अच्छे हैं, प्राणायाम करना चाहिए, जब भी हमें टाइम मिलेगा तब प्राणायाम करना चाहिए। थोड़ा मेडिटेशन कर लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है, देखिए ये क्रम ऐसा है, थोड़ा सा अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करना चाहिए, जैसे रनिंग या कुछ जो भी एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार या पेट के बल के आसन, पीठ के बल के आसन, ये सब करके उसके बाद कुछ सूक्ष्म योगा वगैरह करके उसके बाद प्राणायाम करना चाहिए, और प्राणायाम के बाद थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए। तो मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है, नथिंग डूइंग इज मेडिटेशन, हमें कुछ नहीं करना है। जब हम कुछ नहीं करते तब मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन हैपेंस बिटवीन टू ब्रीथ्स, दो श्वास के बीच में हम जब विश्राम करते हैं उसमें मेडिटेशन होता है। ऑफकोर्स ये स्किल है, इसके लिए काफी कुछ प्रैक्टिस की जरूरत है, तो प्रैक्टिस से अपने आप आ जाता है। देखिए हमारे पास काफी कुछ एबिलिटीज होती है, जैसे हम इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, हम सोचते हैं, विचार करते हैं, कुछ कृति करते हैं, कुछ काम करते हैं, बहुत सारे एबिलिटीज हमारे पास होते हैं। मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से ये सारे एबिलिटीज में कोऑर्डिनेशन आ जाता है। इसलिए कहते हैं ना, जैसे एक कुआं है, या जैसे कुएं में पानी है, वो पानी अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो हम उस पानी में एक इंच नीचे भी हम नहीं देख पाते। बट अगर हम मेडिटेशन से अपने मन को जैसे शांत करते हैं, जैसे वो पानी अगर शांत हो जाता है, तो उस कुएं के नीचे तल में, उसके कुएं कुएं के नीचे जो अगर कुछ चीज पड़ी है तो वो भी हम साफ तरफ से देख सकते हैं। ऐसा ही है, जब हम मेडिटेशन से अपने मन को शांत कर लेते हैं तब हमें उसका असर दिखने लगता है, हमें हमारे अंदर जो खजाना है वो दिखने लगता है, बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो मेडिटेशन करना वाले मतलब क्या है, कुछ नहीं करना है, हमें मेडिटेशन में एकाग्रता, बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमें मन को एकाग्र करना है, हमें वो भी नहीं करना है। मन एकाग्र हो जाता है, मन को एकाग्र नहीं करना है। मन मेडिटेशन में अपने आप एक हो जाता है, काम हो जाता है, शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। जो डिस्टर्ब मन है पूरा इधर उधर भाग जाता है, वो ध्यान करने से अपने आप एक जगह आ जाता है। मेडिटेशन बहुत अच्छा है। चलो अपन थोड़ा सा मेडिटेशन भी कर लेते हैं, कर ले। तो उसके लिए थोड़ा सा कंफर्टेबली बैठ जाए, चेयर में भी बैठे हैं या सोफा में बैठे हैं या टीवी में बैठे, जैसे भी बैठे हो, शांत आराम से बैठ ले। करना क्या है, मेडिटेशन में पोस्चर कैसे रखना है, देखिए आराम से बैठना, ये जो है वो सुखासन बोलते हैं इसको। आराम से बैठना, हथेली आकाश की ओर रखना, ये जो हथेली है वो अप साइड होना चाहिए, और हाथ घुटनों के बल, घुटनों के ऊपर रखेंगे। हाथ एकदम ऐसे स्ट्रेट नहीं रखना है, आराम से बैठना है, कोहनी ऐसी घूमनी चाहिए, मतलब कंधों को आराम मिलना चाहिए, स्पाइन इरेक्ट होनी चाहिए, जो पीठ है वो सीधी होनी चाहिए, कंधे ढीले होने चाहिए, जो नेक है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। स्पाइन इरेक्ट, नेक स्ट्रेट, कंधे शोल्डर रिलैक्स, और पूरी बॉडी, सिर्फ स्पाइन और नेक स्ट्रेट होगी,
बाकी पूरी बॉडी आराम से बैठेंगे, ठीक है, और आंखें बंद करेंगे। चले, अब मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, उसके ऊपर ज्यादा सोचना नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको, मन में जो भी आता है वो आने देने का, बस आराम। एक गहरी लंबी सांस ले एंड छोड़े। टेक वन मोर लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट। अपने चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखे। और एक सांस ले और छोड़े। टेक योर अटेंशन टू द सराउंडिंग अराउंड यू। अपने आजू बाजू के परिसर के ऊपर। अपने आजू बाजू से जो भी आवाजें आती है उसके ऊपर ध्यान दें। जो भी आवाज हम सुन रहे हैं वो सब आवाज को ध्यान दें और सारे आवाजों का स्वीकार करें। एक्सेप्ट ऑल द साउंड्स कमिंग टू यू। जो भी आवाजें आपको सुनाई दे रही हैं वो सारी आवाजों को स्वीकार कर ले। सबका स्वीकार कर ले। और एक सांस ले और छोड़े। अपना ध्यान अपने सांस के ऊपर ले आए। टेक योर अटेंशन टू योर ब्रीथ। इनकमिंग ब्रीथ energizes the body. Outgoing breath calms down the body. बाहर जाने वाली सांस मन को शांत करती है। अंदर आने वाली सांस शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। सांस अंदर आ रही है और जा रही है। वेलकम टू द इनकमिंग ब्रेथ। अंदर आने वाली सांस का स्वागत करें। बाहर जाने वाली सांस को
विदा कर लें। अपना ध्यान अपने विचारों के ऊपर ले आए। हमारे मन में अनेकों विचार आते हैं, अच्छे बुरे कई विचार आते हैं। Take your attention to the thoughts coming in your mind. Accept all bad and good thoughts. जो भी है, अच्छे हो बुरे हो, सारे विचारों का स्वीकार कर लेंगे। मन में जो भी भावनाएं उठ रही है उसके ऊपर ध्यान दें। टेक योर अटेंशन टू द इमोशंस। अच्छी बुरी भावनाएं जो भी है, सुखद है असुखद है, सबका स्वीकार कर लेंगे। Accept all the emotions. Take a deep breath in and relax. अपना ध्यान अपने शरीर के ऊपर लगाएं। पैरों के ऊपर राइट लेग, राइट नी, राइट थाई, and right hip. पूरा राइट लेग के ऊपर ध्यान ले जाए। लेफ्ट लेग, लेफ्ट नी, लेफ्ट थाई, लेफ्ट हिप, पूरा लेफ्ट लेग, रिलैक्स बोथ द लेग्स। दोनों पैरों को पूरी तरह विश्राम दे दें। Take one more deep breath in and out.
Take your attention to the abdomen. जननेंद्रिय के ऊपरी हिस्सों में अपना ध्यान ले जाए। पेट, स्टमक, नेवल रीजन, चेस्ट, छाती के ऊपर ध्यान ले जाए। शोल्डर्स, कंधों के ऊपर ध्यान ले जाए। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, दोनों हाथों को विश्राम दे दें। Take your attention to the throat region. Face, चेहरे के ऊपर अपना ध्यान ले आए। हेड, सिर की चोटी पर ध्यान दे दे। Take a long deep breath in and relax. पूरा शरीर, पूरे शरीर के ऊपर ध्यान ले रहा है। Take your attention to the body. Our body is a precious gift from the God, from the nature. अपना शरीर एक अनमोल देन है। उसके लिए हम ईश्वर का, नेचर का धन्यवाद करते हैं और हम अपने शरीर का सम्मान करते हैं। Let us give due respect to the body. We are calmness, we are happiness, शांतता और आनंद हमारे अंदर ही है। हम ही है।
with awareness. Take a long deep breath in and relax as breathing out. लोका समस्ता सुखिनो लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। अपने विचार और भावनाओं के प्रति सजग हो जाए। अपने आजू बाजू के परिसर के प्रति सजग हो जाए। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। हाथों की पैरों की उंगलियों को हिलाएं। एक सांस ले, आंखें खोल दे। अच्छा लगा? सबको अच्छा लगा? यस नो? Yes, sir. एक छोटा सा टॉपिक है फूड। देखिए, हम जो खाते हैं वो अन्न 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक मतलब फ्रेश फूड, फ्रेश कुक फूड, फ्रूट्स, ये सब मिल्क, ये सब इसमें आता है सात्विक आहार में। इसे हम प्रसन्नचित्त रहते हैं, आनंदी रहते हैं, हमारे विचारों में कमी आ जाती है, हम ज्यादा अलग अलग सलग विचार हमारे मन में नहीं भर जाते, हमारा मन शांत रहता है सात्विक फूड लेने से। बीमारियों का बलि नहीं होते सात्विक फूड से। राजसिक फूड क्या है? तो ज्यादा मीठा, राजा जैसा मतलब ज्यादा मीठा, स्पाइसी, ये सब राजसिक फूड में आता है। और फिर राजसिक फूड से होने वाले बीमारियां भी
राजा के जैसे होते हैं, IBP, अलग अलग जो भी शुगर वगैरह, जो बड़े बड़े बीमारियां हैं वो राजसिक फूड से आ जाती है। और तामसिक आहार, तामसिक फूड जो है वो सब पूरा बासी खाना जो भी है, बासी खाना, सारे प्रकार के नॉन वेजिटेरियन फूड्स इसमें आते हैं। तामसिक, तमस, तमस माने डार्कनेस, तो इससे जो भी मन में आता है वो सब गलत होता है, मन को भटकाता है, तमस बढ़ जाता है, मन में आलस बढ़ जाता है। तमस माने आलस, तमस माने डार्कनेस। राजसिक फूड लेने से हम एक्टिव हो जाते हैं, तामसिक फूड लेने से हम डल बन जाते हैं। ठीक है, हमें क्या लेना है वो अपने ऊपर है, बट ये उसके टाइप्स हैं। जब हम खाना खाते हैं उसके पहले और बाद में कम से कम आधा घंटा पौन घंटा पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? सब साइंस के स्टूडेंट्स हैं। पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? तो हम जब भी खाना खाते हैं उसके साथ जो पाचक रस है वो मिल जाता है, उस फूड में पाचक रस मिल जाता है। अगर हम पानी जल्दी पी जाते हैं या उस खाते वक्त पानी पी जाते हैं तो वो जो पाचक रस है वो डाइल्यूट हो जाता है, जिसका डाइजेशन में कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए हमें खाने के पहले और खाने के बाद में कम से कम आधा पौन घंटा पानी नहीं पीना चाहिए। पर दिन में समर, अगर अभी समर है तो समर में कम से कम 5-6 लीटर पानी अपने पेट में जाना चाहिए। बार बार हमें पानी पीते रहना चाहिए। और अगर हम रेनी सीजन या कुछ थोड़ा सा हेल्दी सीजन है उसमें भी हमें 3-4 लीटर पानी अपने शरीर को देना चाहिए। ठीक है, तो फूड, स्लीप, कितना आराम करना चाहिए, कितना विश्राम करना चाहिए, ये भी है। अगर हम ज़्यादा सोते हैं या ज़्यादा विश्राम करते हैं तब भी डलनेस आ जाता है, और कम सोते हैं या कम विश्राम करते हैं तब भी डलनेस आ जाता है। हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम मेंटली फिट नहीं होते। तो हमें प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। कितनी नींद हमें लेनी चाहिए? तो एक 30 साल का युवक अगर है उसे 7 या 8 घंटे की नींद, 7 घंटे कम से कम नींद लेनी चाहिए। छोटे बच्चों के लिए इसमें थोड़ा ज़्यादा नींद लेने की जरूरत है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 40-50, वैसे वैसे नींद कम हो जाती है, पर फिर भी कम से कम 6 घंटे की नींद हर एक के लिए जरूरी है। बच्चों को तो 7-8 घंटा कम से कम नींद लेना ही चाहिए। तो नींद, प्रॉपर नींद, इससे भी हमारी इम्यूनिटी, हमारी जो प्राण शक्ति, जीवनी ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ जाती है। तो प्रॉपर नींद, प्रॉपर फूड, ये सब हमें अपनी एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए काम आ जाते हैं। ठीक है, और एक है जैसे अभी हमने अ, सीख लिया, कुछ प्राणायाम किया, मेडिटेशन किया। देखिए, मैंने एक उपनिषद में एक मंत्र पढ़ा था जिसका मतलब है द मोमेंट यू ड्रॉप द बॉडी एंड द वर्ल्ड यू विल सी द गॉड। क्या है मतलब? जब हम अपने शरीर को, इस दुनिया को छोड़ेंगे तब हमें ईश्वर मिल जाते हैं। तो इसका सीधा मतलब क्या निकाला? हम मरने के बाद हमें ईश्वर मिल जाते हैं, जो सरासर गलत है। पातंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग की व्याख्या की है। उसमें मेडिटेशन तो एक इंग्लिश वर्ड है, बट उसमें पातंजलि योग सूत्र, महर्षि पातंजलि होते हैं धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 प्रकार आ जाते हैं उसमें मेडिटेशन में। धारणा मतलब कुछ गृहीत धरो, कुछ पकड़ के चलो, कुछ स्ट्रिंग या कुछ पकड़ो, डोरी, रस्सी पकड़ो जिससे हम अंदर तक उतर सकते हैं।
ध्यान उसके बाद शुरू होता है, और ध्यान में हम जब पूरा डीप चले जाते हैं तब हम समाधि में चले जाते हैं, और वो समाधि अवस्था है जिसमें हम अपने आप को भूल जाते हैं, इस दुनिया को भूल जाते हैं। वो स्टेट है, दैट स्टेट ऑफ माइंड, ये समाधि, और उसमें हम दुनिया को, अपने आप को भूल जाते हैं। अब ये जो है, इस ये हम हर एक को तो ये पूरी समाधि तक जाने का अवसर मिले ना मिले पता नहीं, इतना ध्यान करने के लिए तो प्रैक्टिस की जरूरत है। ये सब हर एक के लिए तो पॉसिबल नहीं है, बट इसका एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है आर्ट ऑफ लिविंग में, हैप्पीनेस प्रोग्राम, जिसमें हम सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं। जिन लोगों ने, हमारे स्टाफ में काफी कुछ लोगों ने या स्टूडेंट्स में भी काफी कुछ लोगों ने किया है, उनको पता है ये सब। तो सुदर्शन क्रिया में हमें समाधि की झलक हम पा सकते हैं। तो जब हम सुदर्शन क्रिया करते करते आगे बढ़ जाते हैं, तब हम अपने आप को भूल जाते हैं, इस दुनिया को भूल जाते हैं, पूरा मन शांत हो जाता है। और जब हम पूरा सुदर्शन क्रिया करने के बाद बाहर आ जाते हैं, तब हमें कैसा लगता है, इसका एक अच्छा उदाहरण किसी ने बोला है, जैसे सीजन की पहली बारिश होती है ना, वो बारिश होने के बाद जैसे लगता है ना, वैसे हमें सुदर्शन क्रिया में, सुदर्शन क्रिया से बाहर आने के बाद, तो हर एक को सुदर्शन क्रिया सीखना चाहिए। सुदर्शन क्रिया एक बहुत अच्छी और पावरफुल टेक्निक है, ब्रीदिंग टेक्निक है। बैठ के सांस लेना है और कुछ नहीं करना है। तो ये वो सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग में। सुदर्शन क्रिया हर एक को सीखनी चाहिए, एक बहुत अच्छा पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक है। मेरे ख्याल से मुझे जो करना था, जो बताना था, जो सिखाना था, वो तो खत्म हो गया। आपके कुछ डाउट्स है तो आप पूछते हैं। कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है? If participants have some doubts, can unmute and ask. Otherwise, we can go for conclusion of this session and of the day itself. Good afternoon, sir. Can you hear me? Yes, madam, please. Yeah. Yeah. I just have a question to ask with regards to yoga. Are there any exercises or breathing exercises which could help with positional vertigo for people who have vertigo, dizziness? So would there be any exercises for that? That's all I wanted to ask. आर्ट ऑफ लिविंग में या कई इस एक कोर्सेज में सिखाते हैं, श्री श्री योगा, काफी कुछ योगा सेशंस चलते हैं, उसमें कोशिश है हर एक इसके लिए अलग अलग योगा है, आसन है, प्राणायाम है, आसन भी है उसमें। एक अच्छा पोस्चर है जो अपना लोअर बैक, अपर बैक के लिए भी है, कैट स्ट्रेचिंग बोलते हैं उसमें। तो कैट स्ट्रेचिंग करने से बहुत अच्छा आराम मिल सकता है। कैट स्ट्रेचिंग मतलब हमें अपने हाथ और पैरों का यूज करके, घुटनों का यूज करके 4 लेग पे खड़ा रह के पीठ को ऊपर नीचे करना है, तो इससे काफी कुछ आराम मिल सकता है। Thank you, sir. Thank you. टाइम लिमिट था तो बहुत कुछ बता नहीं सके, बट ये बहुत लंबा प्रोसेस है। 84 लाख आसना है। अभी हमने कुछ बहुत गिने चुने सीखे हैं, तो उसमें काफी कुछ करने जैसा है, प्रैक्टिस करने जैसा है। Is there anybody? Sir, I have a question. Yeah. Yeah. Now, when we do, when we start yoga, first step usually we go for yogasana, and then meditate. I mean pranayama, and then meditation. Or what is the exact order we have to follow? This is the proper order. If we do some exercise, then we have to do some exercise first. So physical exercise, then asanas,
stomach and back rest, both asanas or sitting asanas, standing asanas, and then pranayam. जैसे जैसे हम ये करते जाते हैं ना, हम अपने को शांत करते जाते हैं, तो हमें स्टेबल होना है फिजिकली एज वेल एज मेंटली. सो एक्सरसाइज, आसनास, देन एंड देन मेडिटेशन. मेडिटेशन में हमें अपने आप को बहुत शांत करना है. और माइंड मस्ट बी स्टेबल एंड काम एंड क्वाइट. ये बहुत यही सीक्वेंस है. यूजुअली आसना में योगा आई मीन शवासना आखिरी में करते हैं ना. शवासना आसना में जो बैक ये शवासना जो पीठ के बल के जो आसन करते हैं, तब हम शवासन और पेट के बल करते हैं वो मकरासन आखिरी में करते हैं. जनरली एक्सरसाइज करने के बाद बीच में विश्राम लेना बहुत आसान है. जैसे अच्छा है, जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद भी थोड़ा सा विश्राम जरूरी है. आसना करते हैं, जैसे पीठ के बल के आसन किए, उसमें भी शवासन में थोड़ा सा लेटना चाहिए. पेट के बल के आसन किए, उसमें भी मकरासन में थोड़ा सा लेटना चाहिए. आराम जरूरी है. और प्राणायाम के बाद मेडिटेशन, बीच में आराम करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए. Thank you. Yes, please. Hello. Hello. Yes, sir, please proceed. Sir. Sir, when I was working continuously for around 3 to 4 hours, so sometimes I am getting breathing problem in between. So is there any yoga for such a situation? अभी हमने प्राणायाम सीखा ना, तो डीप ब्रीदिंग करना चाहिए. Sir, Nitve sir, there is one request. You can stop video and you can take mobile close to you so that we can hear clearly. Video बंद केला तरी चालेल sir. आणि देखिए अभी हमने क्रिकेट मैच हम देखते हैं, तो क्रिकेट मैच में कभी कभी देखिए जो बैट्समैन बैटिंग करता है ना, तो बैट्समैन अगर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, हाँ, जो बैटिंग करने वाला बैट्समैन अगर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, तो वो बाजू में खड़ा रह के थोड़ा सा हेवी ब्रीदिंग करता है, डीप ब्रीदिंग करता है. तो उससे क्या होता है ना, वो अपने आप को कंट्रोल करता है, अपना मन शांत करता है, अपना कंसंट्रेशन बढ़ाता है. ऐसा ही है जैसे हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, हमें समय नहीं मिलता है, तो हम ब्रीदिंग करना चाहिए, डीप ब्रीदिंग. एक थोड़ा सा समय निकाल के हमें डीप ब्रीदिंग करना चाहिए. या कभी समय निकला तो बीच में, जैसे अभी ये सीक्वेंस तो है, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब सीक्वेंस है, तो हम बीच में कुछ प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, बीच में कुछ भी कर सकते हैं. जैसे हमें थाली परोस दी, तो उस थाली में से हम कोई भी आइटम लेके खा सकते हैं ना बीच में भी. तो ऐसा ही है, ये सब सीक्वेंस वगैरह वो सब अपनी जगह है, बट हम कोई भी एक प्राणायाम वगैरह, कोई भी डीप ब्रीदिंग टेक्निक या कुछ भी हम फॉलो कर सकते हैं, जिससे हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं. वी कैन कॉन्सेंट्रेट, हम अपने आप को फिट एंड फाइन रख सकते हैं. Okay, sir. Thank you. Andre sir, please proceed. Okay, sir, it was really a wonderful session by Nitve sir, our staff itself, and it is very much useful. We have understood very much the importance of yoga, meditation, pranayama, and I am sure that henceforth also our participant will be making practice of
this regularly. Thanks a lot. With this, I say that today's session is over. If Yurikar sir wants to make some comment, then please, Yurikar sir. Thank you, Nitya sir, for your